Hello guys. Let's wait for a couple of minutes so more guys can join us, and we'll invite Ajinkya. Like you all know, our today's guest is one of the best cricketers India has produced in last decade or so. The vice captain of the Indian team, and yeah, he'll be joining us very soon. So I'm very excited. Questions? I'll just pin a comment in the meanwhile. Ajinkya. Yeah. Start sending in your questions, guys. We'll start curating them, and we'll try to get as many answered as possible. Just give me a moment. Start thinking what all you want to ask about him hitting 6 boundaries in an IPL, or anything you would want to ask him. And yeah, we'll get most of them answers. Let's see if he has joined us till now or not. Ajinkya. Not yet. He's gonna join us in a moment. अच्छा, काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं guys. We are reading all your questions. How would his batting be in upcoming matches? Okay guys, please, Saksham, Steph, please keep sending your questions. 1 minute. Let's see if he's here. Yeah. Send request, and he is joining us in next few moments. Hi. Hi, how are you? I'm good. How are you? Very good, man. Very good. What's happening? A lot would have been happening otherwise, but I know. I know. yeah, sitting at home, spending time, waiting for things to improve. Okay. Yeah. How's it going with you? Yeah, all good at home only, man. Spending quality time with my family, my daughter. So You actually, wouldn't I'm have, enjoying yeah, this, yeah, you wouldn't have enjoying got this so much lockdown. time. Yeah. Yeah. Enjoying this lockdown. I, Looking yeah. from the positive side, Hmm. it's really good. And we can see you're enjoying. I mean, your Instagram also tells us a lot of things. You're cooking. Yeah, What about that coriander rice? that was really good. Appreciated by your Actually, wife? yeah. Obviously, Nice. What else are you yeah. cooking? She helped me. Basically, she helped me. Hmm. Mm-hmm. So it was really nice. But Okay. yeah. I'm trying to help her in cooking as well Hmm. and cleaning the house because everyone has a responsibility. Yeah. And yeah, Nice. And how about your routine? Definitely would be getting some time for your workout. So how's that happening? so my routines basically my day, I get up around 5:30, 6 o'clock in the morning. Hmm. And before my daughter wakes up, I finish my workout, Okay. which is around 30 to 45 minutes. And Okay. once she gets up, one of us has to be with her Right. throughout the day. So that's basically that. I I'm with my daughter and my wife. Hmm. She looks after the house, Hmm. and in between I try to help her as well. Right. But yeah, it's been really good so far. Trying Hmm. to keep my mind in a positive state, Hmm. and yeah. A lot of fans are saying हिंदी में बोलो. हाँ भाई, हिंदी में भी बात करेंगे, इंग्लिश में भी करेंगे, मराठी में भी करेंगे. So yeah, we'll speak in all languages, guys. So Yeah, uh, in case, so I mean, looking at the positives, you have got to spend so much time at home. But yeah, on the other side, you have been someone who is continuously been, on the road, traveling, playing cricket. yeah. So how's it going with you in terms of, let's say, mentally? How are you coping with not going out at all? See, right now, what cricket taught us, and cricket always teaches us that staying in present, any sport for that matter, staying in present and control the controllable. So right now, I think staying in present, which is staying at home, Yeah. staying safe, and looking after your family basically, and help your family
in whatever way you can. जो भी आपको लगता है, जो भी एक काम आप कर सकते हो, आप आपके वाइफ को हेल्प करो, आपके जो माता पिता आप उनको हेल्प करो, उनका ख्याल रखो। अगर छोटे बच्चे हैं आपके घर में तो आप उनका भी देखभाल करो। तो ये छोटी छोटी चीजें है भाई। आई थिंक स्पोर्ट्स हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है राइट कि आपको लाइफ कैसे जीनी चाहिए। अगर कुछ भी चैलेंजेस आते हैं लाइफ में तो प्रेजेंट में रहना जरूरी है। जो आपके हाथ में है आप उसके ऊपर फोकस करो। पेशेंस रखना बहुत जरूरी होता है। और आई थिंक इस राइट मामले में कोविड-19 के बारे में आई थिंक जितना ज्यादा आपके पास पेशेंस होगा उतनी ही जल्दी एज अ नेशन हम बाहर आएंगे। राइट और ये छोटी छोटी चीजें मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। और जैसे मैंने कहा कि जितना पॉजिटिव रह सकते हो इस सिचुएशन में उतना जरूरी है। राइट। और आपने अभी हेल्प की भी बात की, आई मीन नॉट जस्ट हेल्पिंग एट होम बट वी सी यू टेकिंग लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, जैसे आपने महाराष्ट्र सीएम रिलीफ फंड में हेल्प करना हो, या पीएम रिलीफ फंड हो, या फिर लोकल लेवल पे कोई मैसेजेस स्प्रेड करने में भी आप हेल्प कर रहे हो, वेदर इट्स अबाउट डोमेस्टिक वायलेंस, वेदर इट्स एनीथिंग एल्स व्हिच इज हेल्पफुल फॉर द सोसाइटी। तो वो सारे इनिशिएटिव्स के बारे में आप थोड़ा बता सकते हो आपके? बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी भी अ, अगर छोटी भी हेल्प क्यों ना हो, लेकिन हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नहीं इस सिचुएशन में मतलब हम एक्चुअली काफ़ी लकी है कि हमें 2 वक्त का खाना मिल रहा है। हम अपने फैमिली के साथ है। लेकिन अगर आप लोगों के बारे में सोचोगे, किसी किसी को 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल रहा राइट है। जो हमारे डॉक्टर्स है, हमारे पुलिस ऑफिसर्स है, जो अ, बाकी जो कर्मचारी है और उनको घर पे जाने का मौका भी नहीं मिल रहा, उनके फैमिली के साथ समय स्पेंड करने का मौका भी नहीं मिल रहा और हमारे लिए वो एक्चुअली फाइट कर रहे हैं। तो अगर उनके लिए अगर हम कुछ भी मदद हो, अगर हम वो कर सकते हैं, वो करना बहुत जरूरी है। और यही नहीं कि मैं सिर्फ इस बारे में इसी वक्त मैंने मदद की है। मैं फार्मर्स के लिए भी मुझे काफी कुछ राइट करना पसंद है, क्योंकि एक लगाव है फार्मर्स के बारे में मुझे। लेकिन इस राइट सिचुएशन में आई फेल्ट दैट जो भी मेरे से हो सकता है, कोई भी माध्यम हो, मैं जितना हेल्प कर सकता हूँ उतनी हम हेल्प करने की कोशिश करेंगे। Right, Ajinkya. I mean, that's one of the best qualities I believe that you have. You know, we always keep checking थैंक यू। on you, और हमेशा दिखता है कि आप सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो। uh, और एक चीज, अगर हम फैंस की बात करें, आई मीन विल टेक सम क्वेश्चंस बिफोर वी मूव ऑन या टू द नेक्स्ट सेगमेंट, बट जब हम फैंस की बात कर रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन के आ रही है कि शायद आईपीएल एम्प्टी स्टेडियम्स में भी हो सकता है, या नॉट जस्ट आईपीएल, लॉट ऑफ ग्लोबल स्पोर्ट्स। तो आपका क्या थॉट प्रोसेस है वॉकिंग इनटू अ स्टेडियम, लेट्स से इन आईपीएल, एंड देयर आर नो फैंस अराउंड? सी आई थिंक जब भी आईपीएल होगा या जब भी क्रिकेट शुरू होगा और एम्प्टी स्टेडियम्स में होगा, सो इसके इससे पहले हम काफी डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं। सारे प्लेयर्स डोमेस्टिक क्रिकेट खेल चुके हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट में उतनी पब्लिक नहीं आती है। तो हम सारे यूज टू है एम्प्टी स्टेडियम्स में खेलने के लिए। और एम्प्टी स्टेडियम्स में खेलना मतलब पब्लिक के लिए भी एक तरीके से अच्छा है। एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनके लिए काफी अच्छा है। राइट जिस जिस तरीके से ये कोविड-19 स्प्रेड हो रहा है, और इसके लिए इससे अगर हमें बाहर आना है और अगर एम्प्टी स्टेडियम्स में खेलना है तो जरूर एम्प्टी स्टेडियम्स में खेलेंगे हम। लेकिन जैसे मैंने कहा कि हम डोमेस्टिक क्रिकेट काफी सारे मैचेस खेले हैं, सारे प्लेयर्स खेले हैं, राइट सारे देश के प्लेयर्स खेले हैं। तो डोमेस्टिक क्रिकेट में उतना क्राउड नहीं आता जितना आप इंटरनेशनल क्रिकेट में देखो या आईपीएल राइट क्रिकेट में देखो। राइट तो एम्प्टी स्टेडियम्स में जब भी क्रिकेट होगा, अगर डिसीजन लिया जाता है कि एम्प्टी स्टेडियम्स में मैच खेलने होंगे तो जरूर हम खेलेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एम्प्टी स्टेडियम्स में खेलना इस सिचुएशन में काफी, जब भी क्रिकेट होगा, लोगों के लिए काफी अच्छा है। लोगों राइट की सेफ्टी के लिए, लोगों के हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। और लोग लोग जरूर टीवी पे इंजॉय कर सकते हैं। सिचुएशन ऐसी हुई है। राइट वरना हम जब लोग स्टेडियम में आते हैं, लोग हमें चेयर करते हैं, लोग क्रिकेट का मजा लेते हैं, हम ऑलवेज एंजॉय करते हैं। और मैं पर्सनली हमेशा से मानता हूँ कि क्रिकेट ये फैंस के वजह से है। और हम सारे प्लेयर्स जो कुछ है आज, सारे फैंस के वजह से है। लेकिन अगर फैंस को सही तरीके से रहना है, फैंस की हेल्थ सही रहनी है, तो जब एम्प्टी स्टेडियम में मैच करना होगा तो मेरे ख्याल से वो सही कॉल होगा। राइट, आई मीन या safety comes first, and that's what यस। I think will be the major factor in making decisions. या कुछ फैन के क्वेश्चंस आ रहे हैं। डॉकवेव वालिया आई डोंट नो डॉकवेव कैसा नाम रहता है, बट एनीवे वो ये कह रहे हैं कि विच फॉरेन प्लेयर आर यू एक्साइटेड टू वर्क विथ इन द आईपीएल?
I mean, maybe if we talk from DC point of view. Hard to take one name. Hmm. I personally don't believe. काफी लोगों को लगेगा शायद कि मैं काफी डिप्लोमेटिक हूँ, Hmm. लेकिन आप हर एक प्लेयर से सीखते हो, भले वो फॉरेन प्लेयर हो या डोमेस्टिक प्लेयर हो, आप हर एक इंडिविजुअल से सीखते हो। तो डीसी टीम में स्पेशली मैं सभी के साथ खेलने के लिए इक्वली एक्साइटेड हूँ। और जो भी जितने भी आईपीएल मैचेस में खेला हूँ, आपको हमेशा से हर एक प्लेयर से कुछ ना कुछ नई क्वालिटी सीखने के लिए मिलती है। Right. तो आई एम एक्साइटेड टू प्ले विद एक्चुअली ऑल द प्लेयर्स, स्पेशली नाउ टॉकिंग अबाउट फॉरेन प्लेयर्स। सो Yeah. ऐसा कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, पर्टिकुलर प्लेयर नहीं है। सभी के साथ खेलने के लिए मैं उतना एक्साइटेड हूँ, और आई एम श्योर आई लर्न मोर। अच्छा, और रुचित पूछ रहे हैं हाउ टू अवॉइड नर्वसनेस व्हेन टेकिंग गार्ड ऑन द पिच। आई थिंक सी नर्वस जब आप होते हो, कुछ कुछ हद तक अच्छा होता है नर्वस होना। सारे प्लेयर नर्वस होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई प्लेयर नर्वस नहीं होता। अगर आप नर्वस नहीं हो तो आप इस गेम के बारे में सोचते नहीं हो, गेम के बारे में प्यार नहीं है आपको। अगर आप नर्वस नहीं हो तो, अगर आपको प्यार है गेम के बारे में तो आप थोड़ा जरूर नर्वस होते हो, लेकिन बहुत बार होता है कि ज्यादा नर्वसनेस भी अच्छी नहीं होती है। राइट। तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा अपने इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में नहीं सोचो। आपका इंडिविजुअल जो आता है कि मुझे इतने रन बनाने हैं, मुझे ये अचीव करना है, वो अचीव करना है, अगर आप टीम के बारे में सोचोगे तो ऑटोमेटिकली आपकी नर्वसनेस चली जाएगी। राइट। और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ी देर में। बिफोर दैट या आई वुड वांट टू शो यू वन पिक्चर। ओके, देखते हैं खुलती है या नहीं, होप क्योंकि इट्स अ वेरी बेसिकली गुड पिक्चर। yeah, it is a good picture. Mostly, ओके, like all of us have known about your struggles, waking up early like 4 a.m. डोंबिवली से सीएसटी जाना, यस क्रिकेट की प्रैक्टिस करना, बट कुछ ऐसे भी एस्पेक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करना चाहते हैं। आई होप ओके, दिस ब्रिंग्स बैक सम मेमोरीज। यस यस यस। Yeah, so this is 12 year I old was, Ajinkya. yes, I was in, I think, sixth standard that time. Hmm. Fifth, yeah, sixth to seventh. And ये मेरा, आई थिंक, ब्लैक बेल्ट, Yeah. जस्ट मेरे एग्जाम खत्म हुए थे और मुझे Okay. वो सेरेमनी में ब्लैक बेल्ट दिया गया था जो हमारे इसमें होता है। और उसके बाद तुरंत आके घर पे मेरे पापा ने ये फोटो ली थी। Hmm. आई स्टिल रिमेम्बर दोज डेज। और एक्चुअली इस लॉकडाउन के वजह से मैंने दोबारा से कराटे की, मेरे जो जूडो की प्रैक्टिस मैं कर रहा हूँ, मैंने शुरुआत की है। वीकली मैं कोशिश करता हूँ 2 से 3 बार या प्रैक्टिस करूँ, हाफ एन आवर 40 मिनट्स। और तो जरूर वो मेमोरीज दोबारा से फ्रेश हुई है। और कराटे के वजह से एक इंटेंशन था शुरू में कि क्रिकेट तो मैं खेल ही रहा था उस वक्त, Right. लेकिन क्रिकेट के साथ हम जहाँ रहते थे डोंबिवली में, वहीं बाजू में हमारे ये कराटे के क्लासेस होते थे। और मुझे पापा ने पूछा कि आप कराटे करना पसंद करोगे? तो मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं। क्योंकि उस वक्त ऐसी हैबिट थी कि आप आउटडोर जाए, आउटडोर स्पोर्ट्स खेले, आपको नया कुछ ना कुछ सीखने मिलता है। और कराटे जब से मैंने शुरुआत की कराटे की, तो कराटे से फ्लेक्सिबिलिटी, एजिलिटी के लिए मुझे बहुत फायदा हुआ, और उसका जो इम्पोर्टेंस है मुझे क्रिकेट में आके पता चला। और फिटनेस के ऊपर भी बहुत फायदा हुआ। Right. So Good to know. yes, Good to know that you have gone back to karate now during the lockdown. yes, yes, yes. Nice. अच्छा, एक और फोटो देखते हैं। अगेन एवरीवन नोज आपने एक ओवर में 6 बाउंड्रीज मारी है आईपीएल में, एंड यू आर द ओनली बैट्समैन टू डू सो, बट यू केम क्लोज टू दिस early in your career. 10-year-old Yes. Ajinkya Rahane got hit by a fast bowler on the helmet. और उस एज में like any other kid would do, I think, I mean, you would tell us better that you were crying or something, and after that you got up, you took your guard and hit the bowler for 5 consecutive boundaries. तो वो क्या स्टोरी है? ये मैच था आजाद मैदान में, और अच्छा. उस वक्त ओपन टूर्नामेंट करके होता था। तो मैं 9 या 10 साल का था। हमारे टीम के साथ अजान पर गए। तो जर्नी बेसिकली हमारी शुरू होती थी 5:30 6 o'clock इन द मॉर्निंग, ट्रेन पकड़ के डोंबिवली से सीएसटी चले जाना। और वो मैच मुझे अभी भी याद है। फर्स्ट बॉल मैं फेस कर रहा था, और मैं 9-10 साल का था, और जो बॉलर थे सामने वो मेरे ख्याल से 33-34 ईयर्स ओल्ड थे। तो पहला बॉल उन्होंने बैक ऑफ लेन डाला और मेरे आके सर में लगा।
तो हम्म, मैंने तुरंत से हेलमेट निकाला, सारे प्लेयर्स मेरे पास आए और देख रहे थे, मेरा जो पार्टनर था वो भी था, बॉलर और उनके कुछ प्लेयर्स साथ में आए और मुझे उन्होंने बताया कि आप यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करते हो, आप जाओ अंदर जाओ, आपका किट बैग पैक करो और अब घर घर चले जाओ, हम्म, यहाँ पे खेलना आपके बस की बात नहीं है। तो हम्म, मैंने सुना, मैंने कुछ रिएक्ट नहीं किया क्योंकि ऑब्वियसली मेरे टीममेट्स आके मुझे देख रहे थे। हम्म, और 5-10 मिनट हो गए मैं बैठा रहा वहां पर, हेलमेट देख रहा था, हेलमेट को कुछ हुआ है नहीं हुआ है, मेरे सर को हम्म, कुछ हुआ है नहीं हुआ है। हम्म, तो ये सारे ख्याल आते वक्त मैंने ये सोचा कि हम डोंबिवली से इतना बड़ा ट्रैवल करके आए हैं, अप हम्म, एंड डाउन, अगर आप डोंबिवली से देखें तो 3.5-4 आवर्स की जर्नी होती है। और अगर मैं पहले बॉल राइट, पे ऐसे बॉल लगने के बाद मैं अंदर अंदर चले जाऊंगा जो भी है, तो अच्छा हम्म, नहीं है। तो राइट, क्रिकेट वो पैशन पहले से ही था मेरे में, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं चले जाऊंगा, कुछ भी हो जाए यहाँ पर। और उसके बाद मैं खड़ा रहा, मैंने अंपायर्स को भी बताया कि नहीं मुझे खेलना है, मुझे बैटिंग करना है। तो अंपायर्स भी थोड़े सरप्राइज थे उस वक्त। और उसके बाद जो फिर बाद में 5 बाउंड्रीज मैंने मारे, तो ये इंसिडेंट था। तो तभी से एक वो पैशन और गेम के बारे में प्यार बढ़ गया कि हम हम्म, इतना ट्रैवल करके आते हैं, हमारे फैमिलीज इतनी सेक्रीफाइस करते हैं, 3.5-4 आवर्स ट्रैवल करके अगर हम कुछ नहीं करते यहाँ पर आके, तो कुछ तो गलत है। एटलीस्ट एफर्ट करना हमारे हाथ में है। ग्राउंड पे जाके जो हम कंट्रोल कर सकते हैं वो मुझे करना चाहिए। उस वक्त मुझे लगा कि खेलना बैटिंग करना मेरे हाथ में, रिजल्ट जो भी हो जाए वो बात की बात है। राइट। तो आई थिंक ये वो इंसिडेंट था। So is this what Mumbai's Khadu School of Batting is called? आई थिंक सो यस, क्योंकि लोग कहेंगे कि मतलब खड़ूस खड़ूस क्या होता है, लेकिन खड़ूस बेसिकली यही है कि मुंबई में कोने कोने से बच्चे मैच खेलने के लिए आते हैं, वसई विरार से आते हैं, कोई करजत कसारा से आते हैं, सीएसटी तक ट्रेन में राइट, ट्रैवल करके पूरा किट बैग लेके। अगर किसी को पता नहीं होगा तो अगर आप करजत कसारा से आप निकले तो वन में जर्नी 1.5 से 2 घंटे की होती है। या और वहां पे जाके आप मैच राइट, खेलना, तो वो एटीट्यूड अपने आप में आ जाता है। ऐसे नहीं कि आपको कोई वो एटीट्यूड सिखाता है, मुझे लगता नहीं कि खड़ूस एटीट्यूड किसी को सिखाया होगा। ये एटीट्यूड शायद अपने आप से वो बिल्ड हुआ होगा कि आप कैसे क्रिकेट खेलते हो। और मुंबई की स्पेशलिटी यही है, हर एक कोने से बच्चे आते हैं और इक्वली पैशनेटली क्रिकेट खेलते हैं। राइट। और भी एक अनयूजुअल चीज है अजिंक्य आपके बारे में, जिसके जो हमको बात करनी है अभी। आपका फर्स्ट क्लास डेब्यू जो हुआ था, that had happened against Karachi in Pakistan, and you had scored 43। 143 with 28 boundaries. तो वो कैसे था, मतलब it's an unusual debut, right? सो उस वक्त क्या होता था कि हम्म, इंडिया के डोमेस्टिक विनर्स वर्सेस पाकिस्तान के डोमेस्टिक विनर्स, हम्म, हमेशा मैचेस उनके बीच में मैच होती थी। एक हम्म, एक एक साल इंडिया की टीम पाकिस्तान जाती थी, एक साल पाकिस्तान की टीम इंडिया आती थी, डोमेस्टिक टीम हम्म, इंडिया आती थी, और हम्म, वैसे मैच होता था। हम्म, तो जब मेरा डेब्यू हुआ, हम कराची में मैच खेल रहे थे, उसके पहले मैं जस्ट अंडर 19 खेल रहा था। अंडर 19 मैंने इंडियन ऑयल के लिए, सॉरी अंडर 19 मुंबई के लिए मैंने खेला, फिर हम्म, वहां से इंडियन ऑयल के लिए मैंने मैचेस खेले, वहां पर परफॉर्मेंस किया, और वहां वहां से जाके मेरी हम्म, मुंबई टीम में मेरा मुंबई टीम में सिलेक्शन हो गया। तो राइट, उस वक्त एक अभी भी एक बड़ी बात होती है जब आप मुंबई को रिप्रेजेंट करते हो। आपको पता है कि मुंबई की हिस्ट्री क्या है, हम्म, किसने किसने मुंबई को रिप्रेजेंट किया है, तो जरूर एक मेरे लिए स्पेशल मोमेंट था। राइट, मैंने भी एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा फर्स्ट क्लास डेब्यू मुंबई के लिए कराची में होगा। हम्म, तो वो नॉक मुझे अभी भी याद है, जिस तरीके से एज ए टीम हम खेले थे। हम्म, और एक फ्लैट विकेट था जरूर हम्म, वहां पर, लेकिन बहुत मजा आया था। या आई मीन 600 प्लस रन स्कोर किए थे यस फर्स्ट यस। इनिंग में। या ग्रेट बैटिंग एफर्ट। या उसी फॉर्म को आपने कंटिन्यू किया। आई थिंक आपके अगले 4 या 5 डोमेस्टिक सीजन्स में यू स्कोर्ड 1500 प्लस रन्स थ्राइस। आफ्टर 100 इनिंग्स योर बैटिंग एवरेज वाज क्लोज टू 77। तो आपके वो इनिशियल ईयर्स कैसे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के? इनिशियल ईयर्स मुझे याद है अभी भी, जब मैंने रणजी ट्रॉफी में डेब्यू किया था, हम्म, अ, पहले 3-4 मैच मेरे एकदम खराब गए थे। हम्म, और बात चल रही थी कि हम इसे टीम से बाहर निकालते हैं, इसके रन्स नहीं हो रहे तो इसको वापस दोबारा से क्लब क्रिकेट या जो भी है तो उसको खेलने हम्म, देते हैं। लेकिन मुझे प्रवीण सर, उन्होंने मुझे हम्म,
बैक किया वहाँ पर, और वो कोच थे एक्चुअली उस वक्त, अच्छा। और आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम कि उन्होंने मुझे बैक किया वहाँ पर। उन्होंने कहा कि नहीं, 3-4 मैचेस फेल हुए, आप इसे 1-2 चांसेस और दो, क्योंकि अगर हम ऐसे टीम बदलते रहेंगे तो प्लेयर्स कॉन्फिडेंट नहीं होंगे। वो एक बिलीव रहना एज अ प्लेयर बहुत जरूरी होता है। तो उन्होंने मुझे उस वक्त बैक किया, और उसके बाद मेरे धीरे धीरे रन्स नेक्स्ट 3-4 मैचेस में अच्छे रन्स हुए। उसके बाद से दोबारा फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे और मेहनत करने की जरूरत है, मुझे और अपने गेम के ऊपर, बैटिंग के ऊपर फोकस करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है। तो इंटेंशन यही था कि गेम एंजॉय करूं। कभी सोचा नहीं कि मुझे इतने रन्स बनाने हैं या मुझे 1000+ रन्स बनाने हैं हर सीजन में। आई थिंक इम्पोर्टेंट था कि मैं अपनी बैटिंग एंजॉय करूं, मेरा फोकस मैं टीम के ऊपर शिफ्ट करूं, सो दैट मेरे ऊपर जो एज एन इंडिविजुअल जो प्रेशर होता है, या एज एन इंडिविजुअल आप चाहते हो कि आप रन बनाओ, अगर आपका फोकस टीम के ऊपर है तो ऑटोमेटिकली प्रेशर ईज आउट हो जाता है। सो बाद में जो भी साल जितने भी मैचेस में खेला डोमेस्टिक में, इट वाज ऑल अबाउट determination, doing well for my team, and I think enjoying my game, enjoying my batting, which is really important. Right. And those domestic successful seasons led to India debut, but उसमें भी थोड़ा सा twist है. Initially they wrote you off like a test specialist, but ironically your debut happened in T20 cricket against England and you scored 61 of 39. So how Yeah. was the feeling to represent your nation? I mean, you cannot describe in that feeling in words. Right. I was sitting at home, I remember, with my mom, and I was just thinking, I don't know what I was doing that time, but I was sitting at home. So BCCI से call आया उस वक्त, and they told me that you're going to England. You've been selected for T20 team, और मुझे एक्चुअली यकीन नहीं हुआ उस वक्त। और उसके बाद फोन कॉल्स आना शुरू हुए कि आपका सिलेक्शन हुआ है। तो उसके बाद थोड़ा जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, एक्चुअली मैं इंग्लैंड जा रहा हूँ। तो मैंने जाके मेरे मॉम को बताया, और मेरे आंखों में मेरी मॉम भी काफी इमोशनल हुई थी उस वक्त, क्योंकि उनको पता है कि कितनी मेहनत लगती है, और उन्होंने भी इक्वली सेक्रीफाइस किया है। सो एक जरूर स्पेशल मोमेंट्स है हमारे लिए। मेरे पापा ऑफिस में थे तो मैंने उनको फोन करके बताया, और मैंने एक्चुअली एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरा पहले डेब्यू T20 में होगा। मुझे लगा था कि शायद पहले डेब्यू टेस्ट में होगा, उसके बाद मैं वनडे और T20 खेलूंगा। लेकिन एक्चुअली इस कोविड-19 ने बता दिया है कि आपके हाथ में कुछ नहीं है। जो आप चाहते हो आपके मुताबिक नहीं होगा, आपके हाथ में है कि आप मेहनत करो, आपके कंट्रोल में आप वो करते रहो। तो आई थिंक Right. एक्चुअली वैसे होता गया। उससे पहले मैं इंडिया ए टूर पे था ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पे मैंने वनडेज और 4 डे गेम्स पे काफी रन बनाए थे। और उसके बाद मैं इंग्लैंड में चला गया, और उस वक्त अच्छे टच में भी था मैं। तो वो नॉक 61 of 39 was really special, but I think representing India is really special. And और yeah, आई मीन आपकी हम क्वालिटीज की भी जब बात करते हैं, दैट रेजिलियंस, पेशेंस, आई थिंक आपका करियर भी जिस तरीके से शेप अप हुआ है, डिड दैट हेल्प टू बिल्ड ऑल दिस क्वालिटीज? आई मीन टेस्ट डेब्यू की अगर बात करें आपके, आई थिंक 16 straight tests you were in the squad but you didn't get your debut, and finally 18, when you 18, okay, yeah. that's a huge number. I mean उस टाइम पे mentally how did you keep yourself like that never give up वाला attitude रखना, और वो कैसे किया आपने? See, I think जब मैं टेस्ट टीम में आया 2011 में, उस हम्म. वक्त मतलब सारे बड़े बड़े प्लेयर्स खेल रहे थे, सचिन पाजी, Right. राहुल भाई, लक्ष्मण भाई, वीरू भाई, एवरीवन। तो मुझे पता था कि इस वक्त मुझे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली है। मैं अगर इस वक्त ये समय सही तरीके से यूज कर सकता हूँ मेरे फिटनेस के लिए, मेरे क्रिकेटिंग स्किल्स के लिए, तो मेरे लिए बेटर होगा। जैसे 2 साल जब मैं बाहर था टीम में, तो आई वॉज लकी इनफ टू हैव गुड पीपल अराउंड मी। Right. जो 3-4 लोग मेरे दोस्त थे, मेरे फैमिली मेंबर्स है, वो मेरे अराउंड थे। तो हमेशा से मैं उनके साथ शेयर करता था, और हमेशा से वो मेरे साथ पॉजिटिवली बात करते थे। उस वक्त पे मेरे लिए पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी था, क्योंकि एज अ प्लेयर इट्स नॉट इजी टू Easy. सिट Yeah. आउट फॉर 2 years, 18 टेस्ट मैचेस। सो
आई थिंक पॉजिटिव माइंडसेट रखना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। जो भी चीज़ मतलब फिटनेस करना, जो भी कुछ भी है, सब सब चीज़ों को पॉजिटिव तरीके से देखना बहुत ज़रूरी था। एंड अगेन एज आई सेड दैट मुझे बहुत कुछ सीखने मिला वो फेस से, कि कैसे सारे लोग प्रिपेयर करते थे अपने आप को मैच से पहले, मैच के दौरान क्या माइंडसेट होता था। तो उनको देखते हुए बहुत कुछ सीखने मिला मुझे। तो आई डोंट थिंक कि ये जो 2 साल मैंने 18 टेस्ट मैचेस जो मैंने बिताए, उसमें एक भी पल ऐसा गया कि मैं अपने बारे में निगेटिव सोच रहा हूँ या सेल्फिश हुआ हूँ। उस वक्त भी मेरी कोशिश यही थी कि कैसे एज ए ट्वेल्थ मैन भी मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ टीम के लिए। राइट सो वो जो एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड से मुझे काफी कुछ हेल्प हुई जब मेरा एक्चुअली टेस्ट मैच में डेब्यू हुआ। राइट और once things started going well for you, you didn't look back. I mean, I'll put up another photo. और या I mean, आपने साउथ अफ्रीका में you had a 96 का inning, then वेलिंगटन में your maiden century, after that MCG, लॉर्ड्स में century. तो या I mean, how did it feel? Because back-to-back centuries at Kotla, I mean, Kotla where you would be playing for us now, you had back-to-back centuries there also. या So how was this phase once you started going? It was no stopping Ajinkya Rahane. So that time when I made my debut, it was all about doing well for my country. I remember कोटला में मेरा डेब्यू हुआ था अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जो कि इतना अच्छा नहीं हुआ था मैच। उसके बाद अगेन आई वाज आउट ऑफ द टीम फॉर 2 मैचेस। मतलब मैं प्लेइंग 11 में नहीं था, मैं 15 में था। जब वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया में मैचेस हुए थे, मैं उसमें वापस दोबारा से बाहर था। उसके बाद जब हम साउथ अफ्रीका चले गए, आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी। सो उस वक्त मेरा माइंडसेट यही था कि इतने सारे मैचेस में बाहर बैठा हूँ, 2 साल में टीम के बाहर बैठा हूँ, एक भी मैच नहीं खेला हो। तो इट्स ऑल अबाउट आई थिंक प्लेइंग विद फ्रीडम rather than putting too much pressure on myself that time, and as well as doing well for my team, because बाहर जाके मैच खेलना, बाहर जाके मैच जीतना और सीरीज जीतना is very special. Right. So yes, South Africa से actually मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। I remember before 96 I got 47 in Johannesburg in first test match. So वहां से एक्चुअली धीरे धीरे वापस कॉन्फिडेंट बिल्ड हो गया। एंड देन अगेन लॉर्ड्स, एमसीजी। लॉर्ड्स मेरे लिए सबसे स्पेशल सेंचुरी थी बिकॉज वी वन द टेस्ट मैच। एंड या फ्रॉम देयर ऑन आई थिंक इट वाज ऑल अबाउट एक्सप्रेसिंग माई सेल्फ, putting my team first always, and enjoy my batting True. whatever the conditions may be. True. Also, we remember a knock, Mitchell Johnson at his best. Yeah, M- MCG. MCG, Yeah, 250 plus partnership between you and Virat. yeah. So, how was it facing Mitchell Johnson that time? Frankly, when I was actually sitting inside the dressing room, Hmm. when Virat and Murli Vijay they were batting, I was thinking, क्योंकि almost 170 जब मैं बैटिंग करने गया तो हमारा हाँ स्कोर 170 पे 3 था। हाँ तो अंदर से काफी मतलब अंदाजा आया था कि विकेट कैसा है। उस वक्त बॉल थोड़ा पुराना हो गया था। हम्म, तो मुझे लगा कि मैं सोच रहा था कि मैं कैसे अटैक कर सकता हूँ, जाके मैं कैसे रन बना सकता हूँ। मतलब सर्वाइव के लिए खेलना हम्म, बिल्कुल मैं नहीं सोच रहा था। इट वाज हम्म, ऑल अबाउट कैसे जाके मैं रन कर सकता हूँ, कैसे काउंटर हम्म, अटैक कर सकता हूँ। एंड मैन आई वेंट इन। इनिशियली मैंने थोड़ा टाइम लिया अपना, 25-30 minutes, एंड वंस आई गॉट टू नो द विकेट, then I think our communication was back our instincts and back our game. right. Uh, while we are talking about Australia, there's a question coming from Akhil. Akhil is asking, uh, what are your expectations from Ricky Ponting for this IPL? I think I'm really excited, Akhil. रिकी के अंडर में खेलना, बहुत कुछ सुना है उनके बारे में। और मैंने रिकी को भी बचपन में जब क्रिकेट खेलते थे, मेरे आइडल डेफिनेटली सचिन तेंदुलकर और राहुल द्रविड़ है, लेकिन मैं काफी रिकी को भी कॉपी करता था, उनकी बैटिंग स्टाइल, उनकी फील्डिंग स्टाइल। सो आईपीएल में जो जो जब हम खेले हैं दिल्ली और राजस्थान रॉयल्स, जब रिकी कोच थे,
तो 2-3 बार मेरे उनके साथ इंटरेक्शन हुआ। मैंने हमेशा से उनसे फील्डिंग के बारे में बात करी है कि कैसे उनका अप्रोच होता था फील्डिंग के बारे में। इतने सारे डायरेक्ट हिट्स उन्होंने लिए हैं, इतने सारे रनआउट्स उन्होंने ले लिए हैं। तो रिकी के अंडर खेलना मैं काफी लुक फॉरवर्ड कर रहा हूँ। डेफिनेटली एज अ बैट्समैन मैं बहुत कुछ सीख सकता हूँ उनसे। एज अ लीडर बहुत कुछ सीख सकता हूँ उनसे। ओवरऑल क्रिकेटिंग स्टफ जो उन्होंने अपने करियर में किया है, आई एम श्योर वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बट आई एम रियली एक्साइटेड। अजिंक्य, हैव यू स्पोकन टू एनीवन लाइक शिखर हो या ईशांत या अश्विन, किसी से आपने, नॉट अश्विन बिकॉज ही इज आल्सो जस्ट जॉइन द टीम, बट शिखर, ईशांत, इनसे आपकी कुछ बात हुई है अबाउट द एटमॉस्फेयर इन द टीम एंड रिकीज कोचिंग स्टाइल? यस, आई थिंक काफी 3-4 बार बात हुई है कि कैसे एटमॉस्फेयर होता है टीम में, अबाउट रिकी ऑल्सो, कि रिकी एज अ कोच कैसे है, रिकी एज अ पर्सन कैसे है। और उन्होंने एक ही बात मुझे कही है कि टीम का एटमॉस्फेयर मतलब इट्स लाइक अ फैमिली। और बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है, और एक दूसरे को बहुत बैक करते हैं। रिकी के बारे में भी सेम चीज़ उन्होंने कहा कि प्लेयर को बहुत बैक करते हैं। आई थिंक जिस तरीके से हैंडल करते हैं पूरी टीम को एज एन इंडिविजुअल प्लेयर को भी, वो काफ़ी कुछ सीखने जैसा है उनसे। और जैसे मोटिवेट करते हैं प्लेयर को, राइट। बहुत कुछ सीखने जैसा। तो ये काफ़ी ओकेजन्स पे बात हुई है ईशान के साथ, शिखर के साथ, श्रेयस के साथ भी, कि कैसा माहौल है, कैसे होता है टीम में। Right. So Ajinkya will close in next 5 minutes because you also have to go. या एक दो टॉपिक पे हम बात कर लेते हैं, and one of या the topic is something you touched upon right now. One person who had a lot of influence on your game. So anything I mean, you played with him in IPL as a या teammate, then under him as a coach. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है विद राहुल द्रविड़? थिंक वन वर्ड में मुझे कहना होगा तो मैजिकल। उनके साथ मुझे पता है, मुझे याद है एक्चुअली फर्स्ट टाइम हम अगेंस्ट खेले थे दुलीप ट्रॉफी में, हम्म, जो हम्म, चेन्नई में मैच था, वेस्ट जोन से साउथ जोन हम्म, फाइनल हो रहा था, और राहुल भाई खेलने आए थे। और उस वक्त मैच के बाद उन्होंने मुझे बुलाया ड्रेसिंग रूम हम्म, में और बताया कि अब जो कुछ भी कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। आई नो इट्स नॉट इजी फॉर यू, आप रन बना के भी सिलेक्ट नहीं हो रहे हो, लेकिन आप जैसे करते हुए आ रहे हो, जो भी कुछ कर रहे हो, बिल्कुल उसके ऊपर फोकस करना और बैक करना खुद को। चीजें अपने आप टर्न अराउंड हो जाएंगी। तो आई थिंक उनको उस वक्त मेरे परफॉर्मेंसेस नोटिस करना और मुझे बुला के ये सब बात करना, मुझे मोटिवेट करना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। एज अ डोमेस्टिक प्लेयर, आपको पता होता है कि कोई भी इतना बड़ा इंटरनेशनल क्रिकेटर आके और आपके रोल मॉडल आके आपको बुलाते हैं और बात करते हैं, विच इज समथिंग स्पेशल। yeah, और उसके बाद हम इंडियन टीम में ऑब्वियसली एक साथ खेले, राजस्थान रॉयल्स में एक साथ खेले। बहुत कुछ ऑन एंड ऑफ द फील्ड बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। एक ही चीज बताना बहुत ये आई थिंक मुश्किल होगा, क्योंकि राहुल भाई से बहुत कुछ सीखा हूँ मैं। बट एक एक इंसिडेंट मुझे याद है, चैंपियंस लीग के वक्त हम्म, ब्रेक के बाद हम मिले थे, और राहुल भाई और मैं साथ में हम डिनर कर रहे थे, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है। सो आप जब राहुल द्रविड़ के साथ सामने बैठते हो और राहुल द्रविड़ आपसे कहते हैं कि मेरी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, मतलब उनकी बैटिंग अच्छी नहीं हो रही है, हम्म, तो आपको लगता है यार राहुल द्रविड़ जैसे प्लेयर, जैसा बंदा, इतने फ्रैंकली और कैसे, मतलब मुश्किल, उनकी बैटिंग खराब होना हम्म, नामुमकिन है। लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि नहीं यार, मेरा इतना टच नहीं है, इतनी बैटिंग नहीं हुई है, तू राजस्थान रॉयल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, तू अपनी बैटिंग टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। एंड वहां से देन आई रियलाइज कि नहीं, एक्चुअली वो कितना बैक करते हैं, कितना वो विश्वास है उनको मेरे ऊपर। और हर तरीके से, मतलब मुझे ही नहीं, काफी सारे यंगस्टर्स को उन्होंने बैक किया है। बट अगेन प्लेइंग विथ हिम, प्लेइंग अंडर हिम, और एज अ प्लेयर एंड देन एज अ मेंटर, लर्न अ लॉट फ्रॉम हिम। amazing. Last thing, a lot of favorite faces in Delhi Capitals team, right? You have played with them all डोंट along आस्क your मी कि career. कौन एक नहीं नहीं प्लेयर नहीं, है चूज नहीं फेवरेट। करना है आपको, ओके कोई चूज नहीं करना है। वो अलग से एक सेगमेंट रखा हुआ है वैसे, फन सेगमेंट, ओके बट इट ओके वोंट पुट यू इन सच सिचुएशन वेयर यू हैव टू चूज वन ऑफ द टू। तो ओके यहाँ पे बस यही पूछना है कि व्हाट्स योर एक्साइटमेंट लाइक, क्योंकि बहुत से लोगों को आप जानते हो अच्छे से, मुंबई से ही काफी लोग हैं, श्रेयस है, पृथ्वी है, तुषार देशपांडे है,
and a lot of Yeah. India mates also along in the team. So how's your excitement to play for DC? So I'm really excited. I'm really looking forward to it. जब कभी भी IPL होगा, I'm eagerly waiting. But I think playing for DC, what I heard about Delhi Capitals team was very positive team. They back each other, they support each other, and the atmosphere is really good, which is really important. IPL के दौरान सिर्फ आप 2 महीने के लिए साथ में होते हो, लेकिन वो एटमॉस्फेयर अच्छा रखना बहुत जरूरी होता है. एक दूसरे को बैक करना एंड अबाउट टीम. और कैप्टन के बारे में मैंने यही सुना है कि नॉट अबाउट द इंडिविजुअल. So yeah, I'm really looking forward to play for DC. Yeah. और एक चीज होगी, इफ यू टॉक अबाउट ऑकवर्डनेस, आई डोंट नो कि आपको भंगड़ा करने में कितना मजा आएगा विद ईशांत एंड शिखर. ईशांत और शिखर वैसे तो मतलब उन पता है भांगड़ा करते ही है. इंडियन टीम में भी ईशांत तो करते ही रहता है भांगड़ा, और पोस्ट भी करता है कि भांगड़ा करो. लेकिन आई एम श्योर दिल्ली में भी आके, दिल्ली कैपिटल्स में भी आके कहेंगे, लेकिन तब की बात तब देखेंगे कि क्या होता है. Okay, एक क्विक सेगमेंट खत्म करते हैं, फिर कुछ फैन Yeah. क्वेश्चंस करके विल जस्ट वाइंड अप. Okay. सो इन दिस फन सेगमेंट आपको आपके डीसी प्लेयर्स का ऑल्टरनेट प्रोफेशन क्या हो सकता था वो जज करना है. तो Okay. लेट्स सी. अश्विन. Ashwin. Ashwin. I think scientist. ऋषभ पंत. Wrestler. श्रेयस अय्यर. Dancer. He's good at so many things. ईशांत So शर्मा. one thing. ईशांत शर्मा. ईशान को मुझे आई थिंक अगर ईशान थोड़ा कुर्ता पहनेंगे, एक ट्राउजर पहनेंगे, चश्मा अगर उनको दिया जाएगा तो प्रोफेसर. अच्छा. ओके. रिकी पॉन्टिंग. रिकी पॉन्टिंग, यार मैंने रिकी को कभी ऐसा विजुअलाइज नहीं किया. रिकी को ऑलवेज विजुअलाइज किया है कि क्रिकेट खेलते हुए, डोमिनेट करते हुए. तो आई डोंट सी रिकी इन एनी अदर प्रोफेशन. क्योंकि बट अगर कुछ बताया जाए उनके बारे में, मतलब आई थिंक यूनिवर्सिटी के डीन. Okay, that suits him. या शिखर धवन. शिखर धवन एक्टर. Okay, and last Rahul Dravid. राहुल द्रविड़ इज राहुल द्रविड़ मैन. एक और बोनस वन. मोहम्मद कैफ. मोहम्मद कैफ. मोहम्मद कैफ आई थिंक कॉमेडियन. ओके. तो आई थिंक फैन के कुछ क्वेश्चंस लेते हैं. उसके पहले एक क्वेश्चन बहुत आ रहा है कि व्हाट इज मोर डिफिकल्ट, फेसिंग अ स्विंग बॉलर ऑन अ ग्रीन पिच एट 15 for 3 और पुटिंग आर्या टू स्लीप व्हेन शी इज क्राइंग. आई डोंट थिंक दोनों में से कुछ इतना डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं दोनों सिचुएशन एंजॉय करता हूँ. 15 for 3 जब मैं बैटिंग करने जाता हूँ, आई लव दैट सिचुएशन. और जब आर्या मेरे साथ होती है तो वो भी सिचुएशन मुझे मैं एंजॉय करता हूँ. सो आई डोंट थिंक दोनों में से कोई उतना डिफिकल्ट है. अच्छा. आपका एक लेटेस्ट पोस्ट देखा था वड़ा पाव को लेके, तो आई थिंक अक्की पवार हैज अ क्वेश्चन. रहाणे सर मुंबईचा वडापाव मिस करताय की नाही? नक्की. अरे खूप मिस करतोय मुंबईचा वडापाव. तसं बरेच वर्ष झाले की त्या दिवशी फक्त थोडा खाल्ला होता मी वडापाव. म्हणजे बऱ्याच वर्षानंतर ऍक्च्युली खाल्ला होता वडापाव. बट नक्की खूप मिस करतोय मुंबईचा वडापाव. आणि सुरुवातीला जेव्हा क्रिकेट खेळायला जायचो, ट्रेन मधनं प्रवास करायचो, किंवा डोंबिवलीत लोकल क्रिकेट खेळायला जायचो, तेव्हा प्रॅक्टिस झाल्यावर रोज वडापाव खायचो. एक नाही 2-3 वडापाव खायचो. नक्कीच मिस करतो मुंबईचा वडापाव. रमेश इज आस्किंग युअर फेवरेट टेस्ट इनिंग्स. My favorite test innings, Lords, 103. Okay. Jerul is asking who is the best bowler in international cricket today, according to you? Best bowler. Indian team,
or Anything okay? overall, yeah. Chalo, I'll say Rabada from Rabada, Delhi Capitals. Mayur is asking, Arya कशी आहे? आर्या एकदम मस्त आहे. ऍक्च्युली या लॉकडाऊनमुळे माझ्यासाठी खरंच खूप बरं झालं. तिच्यासाठी एवढा वेळ स्पेंड करायला मिळाला मला. आणि काय काय ती शिकते नवीन नवीन. ऍक्च्युली तिच्याकडनं बरंच काही शिकायला मिळतं आर्याकडनं. प्रत्येक सिच्युएशन मधनं मध्ये कसं आपण हॅपी राहू शकतो. नो एक्सपेक्टेशन्स ॲट ऑल. सो या. Kingam is asking, favorite partner to bat in all formats. Actually, I enjoy batting with Virat, Rohit, Pujara also. रोहित एंड पुजारा रोहित एंड पुजारा के साथ हम एक्चुअली एज ग्रुप लेवल से हम एक साथ खेल रहे हैं, इवन विराट एंड मी. सो आई एंजॉय बैटिंग विद देम. विराट, रोहित, पुजारा. Right. Last question, Ajinkya. Rohi Kera is asking, what all daddy lessons have you taken from Rohit Sharma so far? एक्चुअली रिसेंटली हमारी बात नहीं हुई उसके ऊपर, लेकिन जब रांची में जब हम खेले थे साउथ अफ्रीका के साथ मैच, तो बीच बीच में हम मैच के बीच में कभी कभी डिस्कस करते थे. और रोहित यही कहता था कि नहीं यार, उठना पड़ता है रात को, ये सब है तो तू उठा कर, वाइफ को बहुत हेल्प होती है. तो मैंने कहा नहीं, जरूर जरूर. तो डायपर पहनते वक्त कैसे पहना जाता है, छोटी छोटी चीजें जो आपको सीखनी चाहिए. तो यस, काफी कुछ डिस्कशंस हुए. अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन हम नहीं मिल पाए और उतना डिस्कशन नहीं हुआ. उनके लिए कुछ मैसेज, बर्थडे उनका कल. रोहित के लिए पहली बात तो विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे रोहित इन एडवांस. और आई थिंक उनके नॉट ओनली एज अ क्रिकेटर, एज अ बैट्समैन, बट जिस तरीके से वो अपने प्लेयर को बैक करते हैं, विच इज समथिंग रियली स्पेशल. and also as a human being is really good. Right. So Ajinkya, we'll wrap this up now. I would just want you to give a message for our Delhi Capitals fans, and a lot of fans in Maharashtra are also asking you. तो उनके लिए एक मराठी में भी, if you could give a message before closing the session. Okay. So first message दिल्ली वालों के लिए. दिल्ली वालों, आप जितना ईगरली वेट कर रहे हो आईपीएल के लिए, उतना ही हम लोग वेट कर रहे हैं. लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि हम सबको घर पर रहना बहुत जरूरी है. हमारी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो हमें मैसेज दे रही है, प्लीज उसको फॉलो कीजिए. प्लीज आप घर पे रहिए. जैसे मैंने पहले भी कहा, आपके माता पिता है, आपकी फैमिली, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं, प्लीज उनका ख्याल रखिए. दूसरों के बारे में ख्याल रखिए. हम सबको एक अलग तरीके की अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम एक साथ मिलकर हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. और बिल्कुल एक सिंपल सी चीज है जो आप सिर्फ घर पे बैठ के आपके देश के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं. तो प्लीज इंस्ट्रक्शन जो भी मिले हैं फॉलो कीजिए. जब कभी भी आईपीएल होगा हम दोबारा से मिलेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए प्लीज स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, एंड डोंट फॉरगेट टू स्टे फिट एज वेल. महाराष्ट्रातील सर्व माझे जे फॅन्स आहेत, जे मित्र आहेत, त्यांना हे एवढंच सांगू इच्छितो की प्लीज घरी राहा. जे आपल्या गव्हर्नमेंटने आपल्याला सांगितलं आहे, जे इन्स्ट्रक्शन दिले आहेत ते प्लीज फॉलो करा. आपल्या मोठ्यांची काळजी घ्या, जे लहान मुलं आहेत त्यांची काळजी घ्या, आणि सर्वात महत्वाचं म्हणजे स्वतःचीही तेवढीच काळजी घ्या. एक वेगळीच अपॉर्च्युनिटी आपल्याला मिळाली आहे, संधी आपल्याला मिळाली आहे की आपल्या देशासाठी, आपल्या सर्वांसाठी आपण चांगलं काहीतरी करू शकतो. सो लेट्स सर्व येऊन एकत्र फाईट करूया कोविड-19 ला. आणि मला नक्कीच खात्री आहे की आपण याच्यातनं लवकरात लवकर. हॅलो.
Can you hear me, Sumit? Yeah, can you hear me? Yeah, can you hear me now? Yeah, yeah, I can. Yes, go ahead. I can hear you. होय येतोय येतोय